ویلکم، خوش آمدید۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ایک نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ خدا کے کلام سے اور دعاؤں کے وسیلہ سے برکت پا سکیں۔ آج ہم خواب کے بارے میں سیکھیں گے۔ متی اس کا 13 باب اس کی 15 سے 16 آیت۔ مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ بس جب پتیاں نکلی اور بالیاں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ ہاللیلویا۔ خواب بہت اہم ہوتے ہیں، انہیں زندگی میں کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ خدا ہمارے ساتھ رابطہ استور کرنے اور ہماری رہنمائی کے لیے خوابوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح شیطان بھی ہماری زندگی پر اثر انداز ہونے کے لیے خوابوں کو استعمال کرتا ہے۔ خوابوں کی چند اقسام ہم دیکھیں گے۔ گندے خواب۔ گندے خواب وہ ہوتے ہیں جن میں ابلیسی کارروائیاں جیسے حرام کاری، زنا کاری، فحاشی اور دوسری چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ گندے خواب ہمیشہ جنسی بے روی اور جادوگری اور دونوں قسم کی بدروحوں کی طرف سے تحریک پاتی ہیں۔ ان خوابوں کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو صفر کے درجے پر لے آئیں تاکہ ابلیسی تاثیریں پھر زیادہ زور کے ساتھ اس پر قبضہ کر سکیں۔ شیطانی خواب۔ اس وقت شیطان نے اعلیٰ درجے پہ معمور بری روحوں کی ایک بڑی تعداد کو بے لگام چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ ہماری زندگی کے کھیت میں تباہی کا بیج بو کر ہمیں بھاری نقصان پہنچائے۔ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ جو طریقے استعمال کر رہا ہے ان میں سے ایک حلقہ ہمارے خوابوں کا ہے۔ خواب آپ کی روحانی زندگی کی نگرانی کرنے کے لیے ایک مقامی نگرانی کام کرتے ہیں۔ خدا ہمیں برکت دینے، رہنمائی کرنے، ہماری حفاظت کرنے کے لیے اچھے خواب دیتا ہے۔ اس کے برعکس ابلیس برے، تباہ کن اور غلام بنا لینے کے خواب شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ عناصری روحوں کو استعمال کرتا ہے جو مختلف روپ اختیار کر کے یا جانوروں کی شکل میں خواب میں آتی ہیں۔ وہ اس شخص کی زندگی میں تباہی مچاتی ہیں۔ یہ کام کرتی ہے کہ جیسے کاروبار، آمدنی، ازدواج یا تعلیم وغیرہ میں ناکام ہو جائیں۔ ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے خوابوں کے بارے میں۔ پیدائش اس کا 37 باب اس کی 9 سے 11 آیت۔ آپ سب اس واقعے سے بخوبی واقف ہیں کہ یوسف نے خواب دیکھا اور وہ خواب اس کی زندگی میں پورا ہوا۔ لیکن وہ خواب کیسے پورا ہوا؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا۔ وہ قید میں گیا لیکن اس نے اپنے خدا کو نہیں بھولا۔ وہ ہر بات میں خدا کو یاد کرتا تھا۔ اگر اس پہ ابلیس نے اس کو آزمانا چاہا عورت کے ذریعے، تب بھی وہ وفادار رہا خدا کا، اور اس نے کہا کہ نہیں، میرا خدا ناراض ہو جائے گا۔ جب آپ وفادار رہتے ہو تو خدا آپ کی زندگی میں جو خواب یا جو کلام آپ سے خدا کرتا ہے وہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ میں آپ سب کے لیے پڑھوں گی پیدائش 37 باب اس کی 9 سے 11 آئے۔ پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے آپ کو بتایا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا، دیکھو، مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کیے۔ اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا، یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گئی، لیکن اس کے باپ نے یہ بات دل میں رکھی، یہ بات یاد رکھی۔ ہاللیلویا۔ اس نے یہ خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورج اس کا باپ، چاند اس کی ماں اور ستارے اس کے 11 بھائی تھے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ یوسف کے 12 بیٹے تھے جس میں باقی 11 اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب آگے چل کے اس کی زندگی میں پورا ہوا۔ اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا، اس کو بہت دکھ سہنا پڑا، لیکن وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا۔ پھر
आगे चल के हम और एक कुछ ख्वाबों के बारे में सीखेंगे कि किस तरह खुदा ख्वाबों में हमसे बात करता है, हमारे साथ राब्ता करता है, रहनुमाई करता है हमारी। पैदाइश 40 बाब उसका 1 से 23 आयत। ख्वाब, यहाँ पे इस पूरे चैप्टर को पढ़ने से हमें ये बात क्लियर होती है 40 बाब को कि किस तरह से खुदा 2 ख्वाब जब वो कैद में था और उसने यूसुफ ने उन ख्वाबों की ताबीर की। ख्वाब की ताबीर करने वाला कुदरत खुदा ही की है, खुदा के अलावा कोई नहीं जो ख्वाबों की ताबीर कर सके। यहाँ यूसुफ भी जो है मैं पूरा बाब तो नहीं पढ़ूंगी, उसमें से कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, लेकिन आप सब जब इस कलाम को सुने तो ज़रूर पैदाइश 40 बाब कंप्लीट पढ़िएगा, तब आपको और भी खुदा के कलाम में से सीखना को मिलेगा कि किस तरह खुदा हमसे ख्वाबों के ज़रिए बात करते हैं। उन्होंने उससे कहा कि हमने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर करने वाला कोई नहीं। यूसुफ ने उससे कहा, क्या ताबीर की कुदरत खुदा को नहीं? मुझे ज़रा वो ख्वाब बताओ। यानी कि खुदा ने यूसुफ को सिर्फ ख्वाब देखना ही नहीं बल्कि ख्वाबों की ताबीर करने की भी हिकमत दी थी, और हिकमत खुदा ही देता है, खुदा की ज़ात के अलावा कोई नहीं। तब सरदार साकी ने अपने ख्वाब यूसुफ से बयान किया। उसने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि अंगूर की बेल मेरे सामने है और उस बेल में 3 शाखें हैं और ऐसा दिखाई दिया कि उसमें कलियां लगी और फूल आए और उसके सब गुच्छों में पके पके अंगूर लगे, और फारून का प्याला मेरे हाथ में है, और मैंने उन अंगूरों को लेकर फारून के प्याले में निचोड़ा और वो प्याला मैंने फारून के हाथ में दिया। हालेलुया। ये ख्वाब 2 कैदी थे जो उसके साथ थे। उनमें से एक ने ख्वाब में ये देखा कि अंगूर की बेल में 3 शाखें और 3 कलियां, उसमें कलियां लगी हैं और फूल, और उसमें कुछ गुच्छे पके अंगूर के। और फिर उसने देखा कि फारून का प्याला उसके हाथ में। तो इसी तरह उसने जो है आगे यूसुफ उसको बयान करता है कि यूसुफ ने उससे कहा, इसकी ताबीर ये है कि वो 3 शाखें 3 दिन हैं। सो अब से 3 दिन के अंदर फारून तुझे सरफराज फरमाएगा और तुझे फिर तेरे मुंसफ पर बहाल कर देगा, और पहले की तरह जब तू उसका साकी था प्याला फारून के हाथ में दिया करेगा, लेकिन जब तू खुशहाल हो जाए तो मुझे याद करना। हालेलुया। इसी तरह दूसरे शख्स ने भी देखा और उसने कहा कि मैंने उसे देखा कि इसने ताबीर अच्छी की है, तो मैं भी अपना ख्वाब बताता हूँ। तो उसने क्या, ख्वाब में यूसुफ ने उससे कहा कि मैंने भी, दूसरा जो शख्स है वो भी कह रहा है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सर पर सफ़ेद रोटी के 3 टोकरे हैं, और ऊपर की टोकरी में हर किस्म का पका हुआ खाना फारून के लिए है, और परिंदे मेरे सर पर की टोकरी में से खा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शैतान हमारे ख्वाबों में अलग शक्लें लेकर आता है, जानवरों की शक्ल, परिंदों की शक्लों में भी आता है। तो जो इसने ख्वाब देखा, उसके ख्वाब में क्या है कि जो कौवे हैं, उस परिंदे जो हैं उसके वो खाने में से जो सर की टोकरी है उसमें खाना पड़ा हुआ है, वो नोच रहे हैं। तो यूसुफ ने उसकी ताबीर क्या की? यूसुफ ने उससे कहा कि इसकी ताबीर ये है कि वो 3 टोकरियां 3 दिन हैं। सो अब से 3 दिन के अंदर फारून तेरे तन से जुदा करके तुझे एक दरख्त पर टंगा देगा, और परिंदे तेरे गोश्त नोच कर खाएंगे। हालेलुया। जो ख्वाब उसने पहले कैदी ने देखा, तो उसने उसे उसकी ताबीर जो थी उसको सही बताई। दूसरा उसने कहा कि परिंदे तेरा खाना नोचेंगे, परिंदे उसके खाना सर से नोच रहे हैं, तो उसकी ताबीर यूसुफ ने उसे ये बताई। और बिल्कुल इसी तरह 3 दिन के बाद फारून की जो है सालगिरह होती है, उसमें वो इन दोनों को कैदियों को याद करता है। एक को
वही बात जो सर उसका धड़ से जुदा हुआ और लटका दिया गया, और दूसरा जो है अपने ओहदे पे, अपने मुंसिफ पे बहाल हो गया। यानी कि खुदा ख्वाबों के थ्रू हमें आगाही भी करता है। लेकिन इसी तरह यूसुफ ने फिर आगे चल के हम देखते हैं पैदाइश उसका 41 चैप्टर, उसमें फ़ारून ख्वाब देखता है। उसने देखा कि 7 बदसूरत और दुबली पतली गायें। फिर उसने 2 ख्वाब देखे, दोनों ही इसी तरह, और वो दोनों भी आगाही थी। उसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन कोई उसकी ताबीर ना कर सका। लेकिन वही साके जिस ख्वाब देखा और उसकी ताबीर यूसुफ ने की थी, तो उसने याद किया 2 साल के बाद दोबारा उसने याद किया कि हाँ, कि मैं वहाँ पे जब मैं कैद में था तो वहाँ एक ऐसा शख्स देखा जिसने मेरी ख्वाब की ताबीर की, हम दोनों के ख्वाबों की ताबीर की, और वो उसी तरह मर गया और मैं अपने ओहदे पे बहाल हुआ। उससे खुदा ने बहुत हिकमत दी है ख्वाबों की ताबीर करने के लिए। तो फ़ारून ने उसको बुलाया, जब उसे अपना ख्वाब बताया तो खुदा ने उसे सरफराज किया। क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार था। उसने बिल्कुल वैसी ही ताबीर बताई कि हाँ, आने वाले 7 सालों में बहुत फसल होगी। वो जो खूबसूरत गायें हैं, वो बदसूरत गायों ने खूबसूरत गायों को खा लिया। तो यानी कि खुदा ने उसे ये कहा कि आने वाले 7 सालों में फसल बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उससे अगले 7 सालों में काल पड़ेगा। तो खुदा ने फ़ारून को आगाही दी कि अपने लिए अनाज जमा कर ले। उसने कहा कि हिकमत हो। फिर फ़ारून ने देखा कि इसको खुदा ने इतनी हिकमत दी है, तो खुदा ने फ़ारून के दिल में डाला कि तू मेरे मुल्क का वज़ीर होगा। उसे एक अच्छे ओहदे पे फाइज किया, उसको एक अच्छा ओहदा दिया। तो जब उसने उस ओहदे पर गया तो उसने अनाज को अच्छे से स्टोर किया, बहुत ज़्यादा अनाज जो आने वाले 7 सालों के लिए भी पूरा हो सका। तो वो ख्वाब जो यूसुफ ने देखा था कि सूरज, चाँद और 11 सितारे मुझे सजदा करें, तो काल की वजह से उसके भाई उसके पास आए कि खाने के लिए कुछ लेकर आए वहाँ से, क्योंकि आसपास के जितने इलाके थे वहाँ इतना सूखा था कि कुछ उगा नहीं सकते थे। तो वहाँ पे खुदा ने यूसुफ की वो ख्वाब को पूरा किया। वो जब लेने आए तो उन्होंने उसे झुककर सजदा किया। हालेलुया। ये ख्वाब उसे खुदा ने दिखाया था। तो ये ख्वाब इस सूरत में ही पूरा हुआ कि जब खुदा के साथ उसने अपना पूरा दिल लगाया। तो खुदा आज भी हमसे बात करते हैं ख्वाबों के ज़रिए। खुदा आज भी हमें सिखाते हैं ख्वाबों के ज़रिए। खुदा आज भी हमें आगाही और रहनुमाई करते हैं ख्वाबों के ज़रिए। कुछ ख्वाब मैं आपको बयान करूँगी वर्बली। जिस तरह हम ख्वाबों में सांप देखते हैं, वो बंदिश होती है। जब आप ख्वाब में सांप को देखते हैं तो आपका कोई बड़ा काम जो आप कर रहे हो उसमें इब्लीस बंदिश कर रहे हैं या रुकावट डाल रहे हैं। जब आप ख्वाब में खाना देखते हो कि आप ख्वाब में खाना खा रहे हो, एक बड़ा मेज सजा हुआ है और तारीकी है वहाँ पे, और आपके साथ आसपास कुछ ऐसे लोग जो शक्लें बदल गई, आपके अपनों की शक्लों में भी बैठे होंगे एक ही मेज पे। वो खाना खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि अंधेरा है, वो इब्लीस की तरफ से। उसके बाद उस खाने के बाद जब आप खाना वो खा लेते हो तो आपको बहुत बड़ी बीमारी भी लग सकती है। इब्लीस आपकी ज़िंदगी में बीमारी बो जाता है। और जब आप ख्वाब में देखते हो कि आपको गोली लग रही है तो वो इब्लीस आप पर हमलावर होता है। और जब आप ख्वाब में देखते हो कि आपके ऊपर जो है ख्वाब में आप देखते हो कि आपको किसी ने मारा है, यानी कि इब्लीस ने अटैक किया है। आप अगर ख्वाब में देख रहे हो कि एक देग है वो पक रही है, उसमें खाना उबल रहा है, या कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पे खाना पक रहा है, तो इब्लीस आप पर अटैक करता है। यानी कि आपकी जो ब्लेसिंग है, रूहानी तो ब्लेसिंग है, उसको पका रहा है, उसको जला रहा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब आप ख्वाब देखें तो उसको नज़रअंदाज ना करें या उसे इग्नोर मत करें, बल्कि खुदा के खादम से दुआ करें ताकि पूरे ख्वाब का असर आपकी ज़िंदगी पे ना रहे।
खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। हम दुआ करेंगे, ए खुदा मैं ईमान रखती हूँ कि सच्चे ख्वाब सिर्फ तेरी तरफ से होते हैं। आज मैं सिर्फ वही ख्वाब देखूंगी जो कायनात के खुदा की तरफ से होंगे। मेरे ख्वाब खुदा की तरफ से मेरी रहनुमाई का बाइस होंगे, ताकि मेरी ज़िंदगी को अज़ल से मुकर्रर करदा तकदीर की जानिब गामज़द करे। मैं ऐलान करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के ऊपर खुदा की तरफ से भेजे गए तमाम नबूती कलाम ज़रूर पूरे होंगे। आज रात मैं खुदावंद के ख्याल में हासिल करके अच्छे ख्वाब देखूंगी। ए रूल कुदस, मैं अपनी रूह, जान और बदन को यीशु के नाम में अभी और इसी वक्त तेरे सपुर्द करती हूँ। मेरे खिलाफ रात के पहरों के जो बदी के बीज बोए गए हैं वो फूटने से पहले यीशु के नाम में फना हो जाए। मेरे ख्वाबों की तमाम तबाहियाँ यीशु के नाम में गवाहियाँ बन जाए। बेशक खुदावंद ये ख्वाब तेरी तरफ से है। जो ख्वाब मैं देखूँ यीशु तेरी नाम से हो, और वो ख्वाब मेरी ज़िंदगी में पूरा हो। लबही तमई रहूश कशाही समय रखना रबी तली रखना मीन तही रकला बायु रखना मीन तहयु रखना मीन तबायु रखना। यीशु मसीह के